کہ یہاں پر اگر گورنمنٹ آپ نے کسی سرمایہ دار کی لے کے آئیں گے تو شاید ہم بہتری کی طرف جائیں. تو جو پاورفل حلقے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جو اختیار ہے وہ ایک عام آدمی کے پاس، ایک سول بندے کے پاس چلا جائے. وہ شخص جو ہے وہ ببر شیر ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں بات کروں یا ٹی ایل پی کے بارے میں بات کروں، میں بھی اس چیز کو بھی کٹ کر دیا جائے. وہ تو بس ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے اور میں اس کو مکس دال ہی کہتا ہوں خان کو. لیکن یہ ہے کہ ووٹ ضرور کاسٹ کریں. السلام علیکم، میں ہوں نمرا شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں دی پاکستان چیپٹر. آج کل کے دور میں اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں عدالت لے کے جاؤں گا. اس کا مطلب ہے آج کل کے دور میں بھی لوگوں کو عدلیہ پر یقین ہے. آج ہم لوگ آئے ہیں لاہور ٹیکس بار میں ہیں وکلا برادری سے، جانتے ہیں انہی کی رائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ زاہد پرویز. سر ووٹ کس کو دیں گے؟ یہ ویسے سوال سیدھا جو ہے نا یہ پوچھنا میرا خیال ہے کہ غلط ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کو پہلے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ووٹ کس کو دینا ہے. تو آپ کا تو میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ کیا ہے. اگر میں چلیں آپ کا سوال کا جواب سیدھا سا میں دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اور 72 ایئرس سے یہ جو پالیٹکس ایک خاص ادارے کے ہاتھ میں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوشو اکنامک کنڈیشنز بھی اس طرح کی ہو چکی ہوئی ہیں کہ جس میں پاکستان کا ہر جو اسپیکٹ ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. تو اس نقطہ نگاہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر گورنمنٹ آپ نے کسی سرمایہ دار کی لے کے آئیں گے تو شاید ہم بہتری کی طرف جائیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی ساری پالیٹکس میں یا تو فیوڈل لارڈز ہیں یا جو ہے وہ اسی قسم کے لوگ ہیں، اور انہی کے ہاتھ میں 72 سال سے پاکستان کی پالیٹکس جو رہی ہے. تو اس نقطہ نگاہ سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لیکن ڈیولپمنٹ اگر کوئی ہوئی ہے تھوڑی بہت تو وہ اسی وقت ہوئی ہے جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان دی گیون سرکمسٹانسز ابھی پرسوں چوتھ انہوں نے جو اپنا منشور ڈسپلے کیا اور اس میں انہوں نے ایک بہت زبردست بات کی ہے، وہ یہ انہوں نے کی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ نارملائز کریں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی پاکستان کی اکانومی کو آپ نے بہتر کرنا تو انڈیا کے ساتھ آپ کے نارمل ریلیشنز ہونے بہت ضروری ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ سوائے پیپلز پارٹی یا نواز شریف کے علاوہ کسی نے یہ کام نہیں کیا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب پیپلز پارٹی کی ایک گورنمنٹ تھی 2013 میں، 13 کے الیکشن سے پہلے، تو نومبر 2012 میں پیپلز پارٹی کے وزیر تجارت جناب مرحوم امین فہیم صاحب انڈیا گئے. انڈیا میں تقریباً ان کو 2-2.5 ہفتے رہے اور وہاں پر انہوں نے بہت سارے ایگریمنٹس جو اکانومی سے ریلیٹڈ تھے وہ انہوں نے کیے. اور پھر انہوں نے آنے لگے تو انہوں نے ایک بیان دے دیا. انہوں نے بیان یہ دیا کہ ہم 1 جنوری 2013 کو انڈیا کا موسٹ فیورڈ نیشن کا جو سٹیٹس ہے وہ ہم انہیں اسائن کریں گے. ابھی وہ ادھر ہی تھے کہ یہاں پر ایک خاص ادارہ جو پاکستان کی پالیٹکس کو صرف اپنی پوائنٹ آف ویو سے چلانا چاہتا، انہوں نے جو مذہبی لوگ تھے ان کو مال روڈ پہ چھوڑ دیا کہ چلو کرو. اور انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے ڈیفائی کیا اور اس اسٹیٹمنٹ کی انہوں نے مخالفت کی. میننگ دیر بائے کہ یہاں پر اگر کوئی بہتر اسٹیپ کیپنگ ان ویو دی اکانومی آف پاکستان اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کو لینے نہیں دیا جاتا. تو لہذا آج صورتحال یہ ہے کہ وہی ادارہ خود کہتا ہے، جیسا کہ حامد میر کے ایک پروگرام میں انہوں نے یہ بتایا کہ فارن منسٹری میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں صحافی لوگ بھی تھے اور کچھ فارن جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لوگ تھے.
तो वहाँ पर जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब ने ये बयान दिया कि अब हमारे अंदर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ताकत नहीं है कि हम जो है इंडिया का मुकाबला करें। तो ये मैं समझता हूँ ये बड़ी जो भी सर्कमस्टांसिस थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी मुस्बत बात थी। उस मुस्बत पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो बात की वही रियलिटी है, और हमें खुद समझ जाना चाहिए कि हम इंडिया के साथ जो कन्फ्रंटेशन है उसको ख़त्म करें और अपनी इकॉनमी की तरफ तवज्जो दें और अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने देखें। इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़, आपकी 24 करोड़ है। आपकी बहुत सारी चीज़ें इंडिया में जाती हैं, जा सकती हैं अगर ट्रेड हो। तो अब उसमें 24, हमारी तो छोटी सी एक इकॉनमी है 24 करोड़ की, उनके पास 1.5 करोड़ अरब की है। तो अगर आप अपना माल वहाँ पर बेचना चाहें, बहुत सारी चीज़ें आप, तो 1 अरब 45 करोड़ की मंडी आपको मिलती है, और इंडिया को क्या मिलता है? 24 करोड़ की छोटी सी इंडस्ट्री, उसमें भी हमें फ़ायदा है। मसलन आपके मुल्क के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जिस तरीके से मोनोपलाइज किया हुआ है, इंडिया में वही कार जो आप 35 लाख में देते हैं, वो इंडिया में 9 लाख की गाड़ी मिलती है। तो क्या ये आपकी बेहतरी नहीं है? फिर इसमें आप देखें कि इसी तरीके से आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है, उस इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल, उस इंडस्ट्री की जो रिप्लेसमेंट जो है वो आपको इंडिया में सस्ती मिलेगी एज़ कंपेयर टू बरतानिया, फ्रांस और इंग्लैंड और जर्मनी। ये वो हार्ड फैक्ट्स हैं ना। अब वो बंदा जो कह रहा है इंडिया के साथ मैंने तजारत करनी है, यही मेरी इकॉनमी को बेहतर कर सकती है, तो वो सरमायादार है ना, उसको तो पता है कि भी किस तरीके से इस मुल्क की इकॉनमी को और इस मुल्क की इकॉनमी में जो डिफेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता। तो लिहाजा इन सर्कमस्टांसिस में मैं समझता हूँ कि वोट नून लीग को देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राना काशिफ वलायत। सर वोट किसको देंगे? अच्छा, वोट किसको देंगे? बेसिकली वोट मेरा ख्याल है कि बिल्कुल देना चाहिए, और वोट हमेशा जो है आपको एक अमानत समझ के देना चाहिए। उसमें ये है कि अब जो कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर प्रिवेलिंग सिचुएशन चल रही है, जो सिनेरियोज़ डेवलप हुए हैं पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी के, और उन चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें और मेरा ख्याल है कि हर एक जो जनरल वोटर है उसको इन चीज़ों से निकल के बाहर आ के तो फिर देखना चाहिए मेरिट के ऊपर। आप देखें कि अगर फ़र्ज़ कि मैं वोट करूंगा तो मैं जो अपनी आपको बता सकता हूं कि मैं अपने हलके में देखता हूं कि वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके कौन कौन से लोग कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, उन कैंडिडेट्स का अपना जो स्टेटस है वो क्या है, वो कितने अरसे से पॉलिटिक्स में हैं, कितनी दफ़ा MP MNA इलेक्ट हो चुके हुए हैं, और उन्होंने अपने इलाके के लिए जहाँ से वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो फॉल करते हैं, उन्होंने उसकी डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए, लोगों की फलाह के लिए क्या काम किए हैं। तो मेरे नज़दीक तो जो सबसे बेहतरीन जो पैमाना है वो यही है कि आप पहले उन लोगों को ऑब्ज़र्व करें, देखें कि उन्होंने जो है अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के लिए जो कोई काम किए हैं उनको मद्देनज़र रख के उसकी बेस के ऊपर वोट दें। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली क्योंकि हम अंडर डेवलप कंट्री हैं, यहाँ पे लोग जो है अपने मफादात को मद्देनज़र रख के वोट देते हैं, और वो देखते हैं कि अगर हम इस कैंडिडेट को वोट देंगे तो उसका फ़ायदा जो है उनको उस हवाले से पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली या पावर के हवाले से कि क्या होगा, कल को गली महल्ले की सियासत है, थड़े की सियासत है, थाने की सियासत है, कि कल को हमारे लिए जो बेनिफिशियर हो सकता है कि वो कौन सा बंदा हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पॉलिटिक्स से निकल के जो मैं अपना एक समझता हूँ कि अगर अब मैं अपने हलके में अगर देखता हूँ तो वहाँ पे जो बड़ी जमातें हैं मुल्क के अंदर इस वक्त जो मतलब अपने जलसे भी कर रही हैं, कैंपेन भी लॉन्च किए हुए हैं। एक जमात कह लें कि वो अपनी कैंपेन कर रही है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू कर रही है, तो उसमें से ये देखा जाए कि इसमें से कम बुराई कौन सी है। मतलब एक है, एक ज़्यादा बुराई है, एक उससे कम बुराई है कि मतलब वोट देना ज़रूर है लेकिन उस बंदे को दें जो हमारे लिए कम हार्मफुल हो।
क्योंकि ये आज तो वोट चला गया, ले लिया, असेंबली में चले गए, आगे जाके फिर उसकी इकॉनमी से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं कि वो उनको किस तरीके से आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे जब हमारे लोग इलेक्ट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए, ये पॉलिटिक्स करते हैं, पावर के लिए। और जब से ये मुल्क बना है उसमें जो सबसे मेन इशू चल रहा है वो पावर पॉलिटिक्स है हमारे कंट्री के अंदर। तो लोग क्या करते हैं, उस पावर के लिए सारा कुछ करते हैं। आप ये देखें कि इस मुल्क में एक टाइम ये भी आता है कि एक 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उसको जो है आप बिल्कुल फारग कर देते हैं, पॉलिटिक्स से आउट कर देते हैं, और उसके ऊपर जो है आप हरबे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फिर एक वक्त आता है कि एक और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको आप पॉलिटिक्स से अपने कोई तरीके लगा के, कोई टेक्निकल रीजंस की बेस पे उसको फारग कर देते हैं। तो जो पावरफुल हलके हैं वो नहीं चाहते कि जो इख्तियार है वो एक आम आदमी के पास, एक सिविल बंदे के पास चला जाए। होना तो ये चाहिए कि जो सियासतदान है, सियासतदान को सियासतदान का काम करने देना चाहिए। ये एक फ़िल्टर लगेगा, 3-4 इलेक्शन निकलेंगे, उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी, लोग साफ़ सुथरे होकर सामने आ जाएंगे, तो आपके लिए आसान होगा कि आपने किसको वोट करना है, किसको सपोर्ट करना है। और इस मुल्क में हमेशा से पावर पॉलिटिक्स है, और जो पावर का मरकज़ है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिसके पास है उनका जो दिल करता है वो करते हैं। जिन लोगों को वो आगे लेके आते हैं, ये जो साबका प्राइम मिनिस्टर है या इससे पीछे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, उनकी पूरी फैमिली जो है वो, मैं एक लफ्ज़ बोलता होता हूँ, टके टोकरी, कि पूरी फैमिली को ये टके टोकरी कर देते हैं। और उसके बाद अब जो प्राइम मिनिस्टर साबका है उसकी सारी फैमिली के साथ यही हो रहा है। और फिर इसी तरह आप पीपल्स पार्टी को देख लें, उस जमात के साथ भी क्या क्या हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गुंजाइश है देखने वाली, सोचने वाली। तो वोट जो है, मेरी एक रिक्वेस्ट जो है वो आपके मीडिया के थ्रू, कि वोट हमें हमेशा से जो है वो देख के देना चाहिए कि मैं अगर इस बंदे को वोट देता हूँ तो ये जाके मेरे वोट का हक अदा करेगा या नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? रेहान अजीज शेरवानी जी। सर वोट किसको देंगे? कहाँ, किधर? जनरल इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में जी सर। फरवरी को आ रहे हैं। मैं सिर्फ इमरान खान को वोट दूंगा, पीटीआई को। पूछें क्यों? क्यों सर? इसलिए कि लॉजिकली, रैशनली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और हर तरह से वो शख्स जो है वो बबर शेर है। उसने तो जगा दिया हमारी कौम को, एक एक फिलोसफिकल बात बताई है, एक एक रीजनिंग बता दी है। तो इमरान खान सुपर आदमी है, बबर शेर है, कैद है। ये जब बाहर आ गया आप समझे हम रिवाइव कर जाएंगे। तो हम एवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं, और रेवोल्यूशन किसी भी दिन आ सकता है। अल्लाह ताला हदायत दे। और हमारे जितने भी मुक्तदर हल्के हैं, मैं इनसे बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। इन्हीं में से जो इंशाल्लाह रिवर्स लगेगा, गियर लगेगा, यही लोग जो हैं इंशाल्लाह पायनियर होंगे नेकी के। तो नेकी का आलम जो है वो इंशाल्लाह अभी तो ज़रा दबा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हवाएं चल रही। रात की बारिश देखी आपने कितनी तूफानी थी। तो नेचर ने अलार्म दिया है कि हम बड़े पावरफुल हैं, हम तो दिलों को बदल देंगे। तो इंशाल्लाह दिल बदल जाएंगे। ये इंशाल्लाह जितने लोग इसके अगेंस्ट हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट हैं, ये सब इसके साथ होंगी। आप देखेंगी जितने जितने इस वक्त जो बदमाश बने हुए हैं, ये सारे टोपी पहनेंगे, दाढ़ियां रखेंगे, नेक होंगे, बड़े आला लोग होंगे। सर आजकल की जो सियासी सूरत हाल है, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? मेरा ख्याल है कि हमारा मुआशरा एक प्रोसेस में है जिसमें सच और झूठ के दरमियान एक जंग जारी है। और जो झूठे लोग हैं ना, वो भी सच को मान लेंगे आखिर में। यही रेवोल्यूशन होगा। हमने कोई एक दूसरे का गला थोड़ी काट रहे हैं। हम तो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से, पॉलिटिकल प्रोसेस से, लॉजिकल प्रोसेस से, रैशनल प्रोसेस से हैं। तो मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। इन हवाओं में, इस ज़मीन में, इस आसमान में, इन बारिशों में बिल्कुल पैगाम है कि हम सब सच का साथ देंगे। और हमारा बब्बर शेर जो है वो सच का साथ दे रहा है। वो तो एक इस्तियारा बन गया ना, सिंपल बन गया है कि सच्चाई का साथ दो। जितने हमारी दूसरी पार्टीज के लोग हैं, वो नून के हों, वो किसी के हों, सब इसका साथ देंगे, इसकी बात करेंगे। आप देखेंगे नवाज शरीफ भी इसकी इमामत में नमाज पढ़ेगा। आप देखेंगे हम सब पढ़ेंगे नमाज, नेकी होगी इंशाल्लाह। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एडवोकेट नवाल गजल शेख। आप किसको वोट देंगी? मैं टीएलपी को। आजकल की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी?
सियासी सूरत हाल तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुंतशिर है और पाकिस्तान के जो हालात है वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि वोट हर एक का जो है वो हक है और सबको इसके लिए आज़ादी होनी चाहिए मुकम्मल। और मुझे नहीं लगता कि मीडिया भी आज़ाद है इस चीज़ के लिए, क्योंकि सबको कवरेज नहीं मिलती है। जैसे मेरी जो है वो जमात है TLP, उसको प्रॉपर कवरेज नहीं दी जाती, कोई मीडिया उन्हें कवर नहीं करता है, तो यहाँ पर ये आज़ाद तो ना फिर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़ायज़ा मलिक एडवोकेट। किसको वोट करेंगे? जो मौजूदा सूरत हाल है, मेरा तो किसी को भी दिल नहीं कर रहा वोट कास्ट करने को। सियासी सूरत हाल पे आपकी क्या राय है? राय सियासी सूरत हाल तो हमें नज़र नहीं आ रही, हमें सियासत तो नज़र नहीं आ रही यहाँ पे तो एक प्लांटेड बंदे को हमारे सर के ऊपर बिठाया जा रहा है। ठीक है, सियासत होती है ना, एक जमहूरियत होती है, सियासत होती है, बंदे को अवाम को राइट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे किसी का कोई राइट ही नहीं है। यहाँ पर तो कंपेन करने के राइट्स नहीं है, सबसे बढ़कर जो मीडिया है वही आज़ाद नहीं है। जिनको जो है जिन पे पैसे फेंके जाते हैं, 2-4 जो हैं पार्टीज हैं, उनको दिखाया जा रहा है, उनकी कवरेज दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है, लेकिन वो प्लान है। लेकिन बात ये है कि जिनको कवरेज देनी चाहिए, मैं PTI के बारे में बात करूं या TLP के बारे में बात करूं, मैं भी इस चीज़ को भी कट कर दिया जाए, लेकिन उनको कवरेज कहाँ दी जा रही है? बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। तो ये तो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं सोचा समझा कि हमने इस चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट जिन लोगों का दिखाना है, हम बस उन्हीं को ही दिखाएंगे जो उनकी फेवर में है या जिनको वो लाना चाहते हैं। यहाँ तो फिर अगर है मीडिया है वाकई जिंदा है तो हर एक बंदे की जो है पॉइंट ऑफ व्यू उसको दिखाया जाए, ना कि सिर्फ वो जो प्लांटेड बंदे हैं उनको जो है वो दिखा दिया जाए और जो वाकई ही काम करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, उनको जो है वो पीछे धकेल दिया जाए। ऐसा नहीं होता, ये जमहूरियत नहीं है। ये तो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि बादशाही निजाम, वो है कि नस्ल दर नस्ल जो लोग आ रहे हैं बस वही आ रहे हैं, किसी को और को मौका नहीं दिया जाएगा यहाँ पर। सो मेरे ख्याल में जो है वो वोट जो है वो इस बारी कास्ट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वोट कास्ट करने ना आए, क्योंकि ये सबका जो है वो राइट है, ये आपका वोट का राइट है, वो आप करें, लेकिन ये है कि कवरेज मीडिया की तरफ से नहीं होती है, वो दी जाए TLP को भी और PTI को भी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट। सर वोट किसको देंगे? वोट तो मैं अपनी ज़मीर के आवाज़ के मुताबिक ही दूंगा, और मैं देख रहा हूँ कि कौन सी पार्टी जो इस काबिल है कि जिसको वोट दिया जाए। अभी मैं उनके असेसमेंट भी कर रहा हूँ और मुख्तलिफ जो उनके स्लोगन हैं और उनके मंशूर हैं उनको देख रहा हूँ, और फिर उसमें से फिर मैंने असेस करना है कि मैं किसको वोट दूंगा। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन दूंगा ज़मीर के मुताबिक, और उस बंदे को दूंगा जो पाकिस्तान की फलाह बहबूद चाहेगा और पाकिस्तान के लिए काम करेगा, और उसका एम होगा कि वो पाकिस्तान में ही रहे और पाकिस्तान की आवाम के लिए ही वो दिन रात काम करने का अगर उसके अंदर जज्बा है तो हम वोट मैं उसी को दूंगा। सर सेकंड मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आजकल की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? आज की जो सियासी सूरत हाल है वो तो बस एक खिचड़ी बनी हुई है, और मैं इसको मिक्स दाल ही कहता हूँ कि मुख्तलिफ वो चरबा बना हुआ है, मुख्तलिफ दुश्मन जो इकट्ठे हुए थे, दोस्त बन गए थे, आजकल वो फिर अपनी वो दुश्मनी का आगाज़ किया हुआ है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो मतलब मीडिया में वो कीचड़ उछाल रहे हैं, जो कि खुश आइन बात नहीं है। और ये जो सियासत है इसमें जो मुख्तलिफ ये सियासी लीडरान जो कल एक ही पेज पे इकट्ठे थे, आज उनकी जितनी भी बातें हैं वो सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, और तो मैं तो इसको एक गंदी सियासत ही कहूँगा और ज़र्द सियासत ही कहूँगा, जो कि सियासत मतलब ये हकीकी सियासत नहीं है, जो पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए नहीं है। ये सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये सारे लीडरान सियासत कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ये अपना कीचड़ उछाल रहे हैं, और बस यही इनकी सियासत है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं। और पाकिस्तान की आवाम को बहुत मायूसी होती है इन लोगों के बयानात सुन के और इन लोगों की झूठी बातें सुन के, और ये लोग अगर इक़्तिदार में आ भी जाएंगे तो सिर्फ इन्होंने अपने मुफाद के लिए काम करना है, नॉट कि वो पाकिस्तान के लिए कोई काम करेंगे। और आप देख लीजिए कि जिस तरह माजी में होता रहा है कि ये कहते हैं हम पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म कर देंगे, हम पेट्रोल को नीचे ले आएंगे, हम आटा दाल चीनी सब सस्ती कर देंगे, ये सब बातें सियासी 8 फरवरी तक हैं, और जैसे इलेक्शन हो जाएंगे तो ये कोई चीज़ भी सस्ती नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, ना डॉलर नीचे आएगा, बल्कि पाकिस्तान का और ये बेड़ा गर्क करने की सोचेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं बस। और जब इक़्तिदार मिल जाएगा
تو ان کا وہ منصوبہ یا ان کا جو پلان ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ. ہاں جی, بہت شکریہ میڈم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کا نام؟ محمد اسد جوید ایڈوکیٹ. آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ جس کو بھی دیں, لیکن یہ ہے کہ ووٹ ضرور کاسٹ کریں. ٹھیک ہے, میرا یہ پیغام ہے کہ ضرور کاسٹ کریں, کیونکہ جو ہے ووٹ ضائع نہ کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میری پارٹی کا یہ بندہ نہیں ہے یا میری پارٹی میں اس کو لائک نہیں کرتا, میں یہ نہیں کرتا. اب ووٹ ضرور کاسٹ کریں, ٹھیک ہے, اور ضائع نہ کریں, کیونکہ اس دن جو ہے وہ پرانے مردے بھی آ جاتے ہیں. جو اگر کسی کو ملنا ہے اپنے پیاروں کو تو بے شک پولنگ ڈے والے دن وہاں پہ چلے جائیں, تو وہاں پہ وہ آپ کو مل جائیں گے. تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. پلیز 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 ووٹ ضرور کاسٹ کریں. بس بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ توحید احمد. ووٹ کس کو دیں گے؟ خان کو. سر آج کل کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بس جی اداروں کے ساتھ ہیں اور اداروں کی پیروی کرنا ہر بندے کا حق ہے, اور ووٹ کیونکہ ہر بندے کا کانسٹیٹیوشنل حق ہے, اس لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ نصر من اللہ. سر آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ میں نون لیگ کو ووٹ کر رہا ہوں, PMLN. سر آج کل کے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سیاسی صورتحال اسٹیبلش نہیں کبھی مطلب ملک ہو پایا. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک پارٹی کو ٹائم دینا چاہیے جو مطلب کہ ووٹ کے ذریعے آ رہے ہیں, اس کو ایک پراپر ٹائم ملے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں. تو میں امید سے ہوں کہ انشاءاللہ PMLN آئے گی, ترقیاتی کام ہوں گے اور ملک ترقی کرے گا. بہت شکریہ. جی ویلکم.